Assalamualaikum, dear students. My name is Asim Jan, lecturer in chemistry. Okay, dear students, first year की कोर्स है केमिस्ट्री कोर्स का चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम और लेक्चर नंबर 4 है द टॉपिक इज 7.2 and that is the title is factors affecting equilibrium. Hope so you all familiar with the term equilibrium, that what is equilibrium. Okay. Now we have to discuss what are the factors which affect the equilibrium of a system which is already in equilibrium. Remember, dear students, the factors which affect the equilibrium, factors affecting equilibrium, look, they are the factors included date, the concentration change of reactant and product, they affect the equilibrium. Change in concentration of reactants in product will affect the equilibrium. How it affects the equilibrium of a system? For that purpose, we will definitely discuss the Chatier principle in this lecture number 4 from the chapter number 7, chemical equilibrium. So concentration affect the equilibrium of a system if we change the concentration of reactant and product, if a system is already at equilibrium. Okay, number 2. Number second factor is pressure. Pressure may also affect the equilibrium of a system. Or instead of pressure, we also take the volume. Volume or pressure also affect the equilibrium of a system. Let, for example, that will be probably big for those systems where reactants and products, especially that is present in the gaseous state. Now we will discuss the pressure and equilibrium. Okay, the factor number 3 which affect the equilibrium, and that is temperature. Temperature also affect the equilibrium of a system. Okay, dear students, remember here a point for questions for board paper point of view. I will get a question idea number first here. Now, for example, if there is a question such like that you may ask, pick that factor which affect equilibrium as well as the constant of equilibrium. So how you have to take that one. Okay, remember, dear students, the question idea is temperature affect equilibrium as well constant of equilibrium. The constant of equilibrium, it affect the Kc as well as the Kp. But remember this point, you people must remember this point, and the point number second is that pressure, concentration or volume only affect equilibrium of system, but it not affect constant, Kc or Kp of a system which is present already at equilibrium. It only affect the equilibrium of a system. So you people must remember these 2 points, point number first and point number second. Okay, now we'll move further to the factors affecting equilibrium, and for that purpose we have to learn here about a principle known as Le Chatelier's principle. Chatelier's principle. Okay. First of all, we have to learn some point related to the Le Chatelier's principle. In the Le Chatelier's principle, basically, that is explained that if we change the concentration of a system already at equilibrium, how the equilibrium is disturbed, and in which direction the system will move to attain the equilibrium again. If we change the pressure or volume, how the system will minimize their change, and if we change the temperature, how it will minimize their change. The system will minimize the change. So Le Chatelier's principle, number first point, that this is applicable for both physical and chemical equilibrium.
What it means that either a system where reactants and products present, मतलब there is a chemical reaction occur and a reversible reaction, or there is a physical process equilibrium established. Then the Lechatelier's principle is applicable for both of them, either physical or chemical equilibrium. In this chapter, we studied in the lecture number 1 that what is a physical equilibrium and what is a chemical equilibrium. We already studied that. Okay, now, what is the statement of the Lechatelier's principle? So we will look to the statement of Lechatelier's principle. In the Lechatelier's principle, it states as look, F a system at equilibrium is stressed, or that is affect or disturbed, stressed by change in concentration. For concentration, I will write CONC, that is understandable. This is used for concentration, or I may write this one completely, but remember that CONC represents concentration. So change in concentration, change in pressure or volume, or change in temperature, look, the system already at equilibrium, and we stress that system, we disturb that system by means of change in concentrations, by means of change in the pressure, by means of change in the temperature, look, then system equilibrium disturbs, because stressed by these factors disturb, and system will regain equilibrium to minimize the change. Okay, what it meant, so what this statement meant, which is a statement of Lechatelier's principle, I will repeat that in simple terms. Let, for example, there is an equilibrium established between in a system like reactants and products. Let, for example, there is equilibrium established in that system. The system is at equilibrium, so I will write the Kc, a constant of equilibrium in terms of concentration. That's product concentration and reactant concentration. Look, if I change the concentration of either product or reactant in that system, equilibrium will definitely collapse, or is disturbed, or is stressed, and the system will minimize their change when I increase the concentration of reactant or I decrease the concentration of product. Then that system will definitely minimize this change. Or either for a gaseous system I change the pressure, in the system will also regain equilibrium in order to minimize the change. What is the change? The change is the pressure, change in concentration or change in temperature. So how Lechatelier's explains that by change in concentration, how equilibrium disturbed, and in which direction the system will move to regain the equilibrium or to minimize the change. The second one, what will be the effect of pressure? And number third, what will be the effect of the change in temperature? Okay, dear students, remember another point here. This is a question point 2. Question point 2 for you people. Remember that catalyst is the factor which not affect the equilibrium of a system. I repeat, catalyst not affect equilibrium of system. So what is the role of the catalyst? We will discuss that in the last factor. It's not to be said to be the factor, but you may see that when we add catalyst in a process, it's just reduce the time to establish the equilibrium. It's just reduce the time to quickly establish equilibrium in a system. Okay, so we'll pick this one by one. Effect of concentration, effect of pressure, the effect of temperature. In the last one, we will discuss the effect of the catalyst. Okay.
student. Okay, so now we have to discuss the first one, and the first one that is you may consider this one as 7.2.1, which is the effect of concentration. How concentration affect the equilibrium of a system, and how the Kc will again establish. Okay, so let's discuss the effect of concentration according to the Le Chatelier's principle. Okay, look how Le Chatelier explain the effect of concentration. Let for example, there is a reaction between the nitrogen and oxygen love to form nitric oxide. Let it form nitric oxide. How we say that by changing the concentration of reactant or by changing the concentration of the product, equilibrium is affected. Look, at some temperature, the Kc of this process, I will write here, the Kc of the process is concentration of nitric oxide raised to power 2, the concentration of reactant nitrogen, and the concentration of reactant oxygen. This is the Kc, the constant of equilibrium in terms of concentration. Okay, log number first. The point number first is, let for example, if we add reactants, nitrogen and oxygen in that equilibrium, what will happen? Number first, if the equilibrium is established between the nitrogen, oxygen and nitric oxide, and after establish the equilibrium, इसमें क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, इंक्रीज किया. वी एड रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट विल हैपन? What will happen? It happens that the equilibrium disturbs. Equilibrium disturbs, and the system move in forward direction. To minimize that increase in concentration. To minimize the change of concentration. So how it will minimize? So when you add reactants in that reaction, the system will move in the forward direction to form more and more concentration of nitric oxide. Then after that, it will minimize the change of the concentration until and unless when the equilibrium is established. Because the system will regain equilibrium again. So by the addition of these two reactants, dear students, the system move in the forward direction. कब तक मूव करेगा? तब तक मूव करेगा जब तक सिस्टम में दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता. ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है फिर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. हमने पहले लेक्चर्स में क्या हुआ है कि इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड भी जाते हैं, किधर भी जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हैं. अब हमने क्या किया, पहले से इक्विलिब्रियम था, हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ा दी उसमें, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इधर बढ़ी, चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करेगा. किस पर्पस के लिए? जो हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी है ना, वो क्या हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए, वो चेंज कम हो जाए. तो द सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स वी एडेड. ओके, पॉइंट नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2. Look to the second point. The second point is, let we remove the product. Let we remove nitric oxide. Mean it's a product in the process, in the above process. We remove the product. What will happen? Again, when we remove the product, then again equilibrium disturbs. Equilibrium again disturb, and system again move
again move in the forward direction, move in forward direction to minimize the change, in the concentration of product. Because once you remove the product, तो उससे क्या होगा, जब हम ये प्रोडक्ट इधर से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पहले से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आ रहा था। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट को इधर से रिमूव किया। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इधर से फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेज तक ले आए। तो सिस्टम जब हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया तो उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो चेंज को मिनिमाइज करे और दोबारा इक्विलिब्रियम को क्या करे, एस्टैब्लिश करे। ठीक है, अच्छा देखिए हम इससे एक और एग्जांपल्स भी पिक कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन और हियर इज अनदर एग्जांपल। लो हम एक दूसरा एग्जांपल भी पिक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में ले रहा हूं, लेट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia. Let for example, हमको ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर आप कंसंट्रेशन को फोकस करें, सिर्फ कंसंट्रेशन को, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को, तो ये बताए कि हम एमोनिया की ज्यादा पैदावार कैसे, by the change in the concentration of reactant or either the product we obtain more and more ammonia. दोबारा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस आपको इस तरह जरूर आएंगे कि कंसंट्रेशन के फैक्टर्स को बेस बनाए एंड यू विल एक्सप्लेन दैट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया वी टू ऑब्टेन मोर एंड मोर बाय ऑब्जर्विंग द रिचर्ड प्रिंसिपल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो लो हम मोर एंड मोर एमोनिया कैसे बना सकते हैं, लो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एमोनिया, product NH3 to obtain, हम कैसे obtain कर सकते हैं, that's also known as an application of Leach-Trier principle. I ate the question mark that more amount of the product ammonia to be obtained, how we have to obtain that more amount of ammonia. We'll obtain this by the two terms. Number first, dear students, look, number first is that we add nitrogen and hydrogen concentration। तो जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, द सिस्टम will move in the forward direction, तो जब सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है ना, तो से ज्यादा एमोनिया की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले में। ओके, हम दूसरा क्या कर सकते हैं, सेकंड वन हम ये कर सकते हैं, वी हैव टू रिमूव द NH3। अगर हम एमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं या रिमूव करा देते हैं उधर से, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो हम ये कह सकते हैं, अगेन द सिस्टम will again move in the forward direction। so, दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा to form more ammonia। that is also known as the industrial application for the synthesis of ammonia by a factor of concentration। Okay, by adding the reactants, the process moves in the forward direction to form more and more ammonia। Either when we remove the product, then again the equilibrium disturbs, और ये सिस्टम जो है अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सके। तो उस सूरत में एमोनिया की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, look, we will discuss the second effect. Look, effect number 2. So the second effect is 7.2
0.2, the topic number, and the topic is effect of pressure. No, effect of pressure or effect of volume as well. Effect of pressure or effect of volume. Effect of pressure or the effect of volume. How it affect the equilibrium of system. First of all, he says that this one is applicable for. This is applicable for gaseous reactants and products. Reactants and products. Why I write gaseous reactants and products only? Because remember that the gases are compressible to the large extent, but liquid and solids are said to be they are very negligibly to be compressed. That's why the effect of pressure is not studied for liquid and solids. No, liquids and solids are not compressed to large extents because they have negligible spaces. They have the negligible spaces. To the large extent, we can't compress the liquids and solid. That's why the effect. That's why pressure effect. The pressure effect is only for reactants. For reactant, I will write are in products in gaseous state. When they are in gaseous state, because the gases are compressible, they are compressed to the large extents because they have more spaces. You are definitely familiar because in the chapter number 4, according to the properties of the gases, we see that the gases has more spaces. Due to these spaces, we can easily compress the gases. So the pressure effect definitely affect the concentration of product or reactant by changing the pressure for a gaseous system. But for liquids and solid, which are not compressed to a large extent, then the pressure effect will not be considered for liquid and solids. So that is only considered for the gaseous reactants and the products. You can also say that ये जो इफेक्ट है ये हम सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम पे जो है वो अप्लाई करते हैं, जहाँ पे कुछ गैसेस रिएक्टेंट्स मौजूद हो या कुछ गैसेस प्रोडक्ट्स मौजूद हो, तो प्रेशर के चेंज करने से कंसंट्रेशन ऑफ गैस में चेंज आएगा, नॉट कि लिक्विड और सॉलिड में जो है वो चेंज आए. इसलिए हम इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी करते हैं. कहाँ पे स्टडी करते हैं? फॉर गैसियस सिस्टम स्टडी करते हैं. ठीक है. So the pressure effect is only for reactants and products in the gaseous state, not in the liquid and solid. They are said to be non-compressible, or they are not compressed to a large extent. Okay. What is the statement of the effect of pressure or the effect of volume here in this factor? So we'll make a statement first. Now, dear students, we will make a statement here, and the statement is: by increase in pressure, according to Leachate here, by increase in pressure, by increase in pressure for gaseous equilibria pressure, the system will move in the direction of decrease volume. How you will pick that statement? Okay, when we increase the pressure, then in which direction the system will move? System उस direction में move करेगा जहाँ पे decrease in volume होगा. आपको किसी gaseous equilibrium में कैसे ये पता चलेगा कि कहाँ पे decrease volume है, या कौन से डायरेक्शन में ये सिस्टम जाएगा अगर हमने उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा दी? ठीक है. सबसे पहले आपने ये पिक करना है
हाउ टू आइडेंटिफाई द डिक्रीज वॉल्यूम। याद रखिए डिक्रीज वॉल्यूम आप उधर से पिक करोगे किसी सिस्टम से जिधर लो या लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आई रिपीट, डिक्रीज वॉल्यूम मीन लेस नंबर ऑफ मोल्स। जिस साइड पे गैसियस रिएक्टेंट्स या गैसियस प्रोडक्ट की जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, प्रेशर की इंक्रीज करने से याद रखिए सिस्टम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि उस चेंज को वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। इज इट क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर कराता हूं, ठीक है? आप लोग जरा एग्जांपल पे फोकस करें। एग्जांपल है, लेट फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे, ठीक है, टू फॉर्म एमोनिया। The process is known as Haber's process, ठीक है? प्रोसेस को Haber's process कहा जाता है। ओके, लेट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि वी इंक्रीज द प्रेशर। हमने प्रेशर क्या करी है, इंक्रीज। अप एरो मीन इंक्रीज प्रेशर। अप एरो से यहां पे मैं जो पिक कर रहा हूं इसका मतलब है इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज, सिस्टम किस डायरेक्शन मूव करेगा ताकि वो इस इंक्रीज प्रेशर के इफेक्ट को वो मिनिमाइज करे और दोबारा वो इक्विलिब्रियम बनाए। कैसे आप पिक करोगे, जरा इधर आप लोग सारे फोकस करें। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का है, 4 मोल्स हो गया। प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 2। तो देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है उधर वॉल्यूम भी कम है, तो प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम कम है। तो लेट जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो इस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि सिस्टम मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, in forward direction to minimize the change. Because increase in pressure, then the system will move in the direction of decreased volume. Where is decreased volume? On the product side. Because जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना तो वहां पे वॉल्यूम उस जगह का कम होता है जिधर ज्यादा वॉल्यूम होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जिधर डिक्रीज वॉल्यूम होते हैं ना तो सारा सिस्टम उस तरफ जो है शिफ्ट हो जाते हैं अपना प्रोसेस। So when we increase the pressure, here is more number of moles present. So the big change is possible here on reactant side, where reactant will move to the product side. So the system will move in the forward direction to minimize the increased pressure change. Okay, log to the second example. Log to another example. Log. Log to another example. Let for example, we take a system where number of moles of reactant and products are same. I repeat, this is a gaseous system. Reactants are gases, product is also in the gas state. So here are 2 moles, here are 2 moles. The number of moles of reactants are 2. The number of moles of product 2. Can you identify कि किस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है? नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों तरफ तो सेम मोल्स है। तो स्टेटमेंट तो ये है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर डिक्रीज वॉल्यूम होगा। अगर प्रेशर आप डिक्रीज करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर इंक्रीज वॉल्यूम होगा। तो पॉइंट इज कि जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, सिस्टम गैसियस हो, याद रखिए इन दिस सिस्टम, इन एबो सिस्टम as number of moles of reactants are equal to number of moles of product, then pressure has no effect. Pressure has no effect. No effect. You may increase the pressure or you may decrease the pressure, then it will has no effect. क्यों इफेक्ट नहीं होगा? बिकॉज जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स है, दोनों का तो वॉल्यूम सेम है तो गैसियस सिस्टम वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स सेम है। देन इन सच गैसियस सिस्टम प्रेशर हैज नो इफेक्ट।
Is it clear? The effect of the pressure. Okay students, so next say 7.2.3 effect of pressure के बाद next say effect of temperature. How temperature change will affect the equilibrium, and how temperature change will affect also the constant of equilibrium. So first of all, you all are familiar with the term that change in temperature. First of all, this one, change in temperature. This one, look, it affects the equilibrium as well as the constant of equilibrium. Block number first, it affect equilibrium. ये equilibrium भी affect करेगा, but remember that it also affect the constant of equilibrium. It also affect constant of equilibrium. ये इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को भी अफेक्ट करेगा, मतलब Kc एंड Kp को भी अफेक्ट करेगा. द कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट करेगा. आप टेम्परेचर की फैक्टर को डिफरेंट प्रोसेसेस में कैसे जो है उसको पिक करोगे, या उसके क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पेपर्स में. तो लोग जरा देखिए, हम जो प्रोसेसेस पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है अच्छा सब में. लेट फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है, और उस प्रोसेस की हमें गिवन है कि इसमें हीट भी रिलीज हो जाती है. जब आपको कोई सिस्टम ऐसे गिवन हो तो याद रखना है, या तो आपको इस तरह गिवन होगा, या दूसरा पॉइंट आप जरा समझे, या सेकंड वन, या इसकी जगह अगर आपको ऐसे दिया जाए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट्स एंड हियर एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव, तो याद रखिए, या हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड या उसकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव लिखा हो, इसका मतलब ये है ये कौन सा प्रोसेस है, या ये कौन से सिस्टम्स है. ऐसा सिस्टम जो कि एक्सोथर्मिक कहलाएगा. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. एक्सोथर्मिक कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, उसकी एंथैल्पी चेंज जो है हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है. मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन क्लियर करा. मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, कि एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स को हीट चाहिए, ठीक है, नेट चेंज ऑफ हीट इज इंडो है, रिक्वायर्ड है टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. या तो इस तरह गिवन, या फिर इसकी जगह ऐसे गिवन हो कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट्स and here enthalpy change of this process is positive. तो याद रखिए, फिर इस सिस्टम को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं ये क्या है, एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक. Now, whole the Churchill principle explain the effect of temperature on exothermic system or in the endothermic system. How we will pick that? Look, statement pick करते हैं सबसे पहले. The Churchill statement here and statement here both have the same statement, and we will pick that by an example. The statement states like this one. Increase in pressure will always favor endothermic direction. I repeat, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वो हमेशा उस डायरेक्शन को फेवर करेगा जो एंडोथर्मिक होगा, जिसको हीट चाहिए. एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जिसमें इन्वॉल्व. तो अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को देखते हैं तो वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो तो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है. जब हम इस तरफ देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको चाहिए हीट, तब जाके वो प्रोडक्ट्स जो है वो बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस या प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है. स्टेटमेंट है इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर will favors endothermic direction. That will favor endothermic direction. In the same statement here, that increase in temperature
increase in temperature will favors endothermic direction. So what it means? It means that you will take this concept. Look, by temperature increase, if a process is exothermic in the forward direction, then if you increase the temperature, then at that case the Kc will be decreased. And in the case of endothermic process, when you increase the temperature, then the Kc definitely will be increases. In this case, that will be decreased. I repeat here, log, by increase in temperature for a system what? For those systems which are exothermic in the forward direction, they increase in temperature, log will shift system in reverse. क्यों रिवर्स में शिफ्ट करेगा? बिकॉज अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है तो रिवर्स डायरेक्शन में ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा. स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन, नॉट एक्सो. So increase in temperature will shift the system in the reverse direction in the case of exothermic reaction. Like for example, इसका हम एक एग्जांपल पिक करते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन इसका पिक कर रहे हैं कि लेट फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड है. ठीक है, उसको डिकम्पोज करके बना रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इस सिस्टम जो है इसकी एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या है? वो नेगेटिव है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है, रिवर्स डायरेक्शन में ये एंडो है. अगर लेट फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, so temperature increase, what will happen? System move or shift in reverse direction. सिस्टम रिवर्स जाएगा. तो याद रखिए, जब सिस्टम रिवर्स जाएगा तो इसकी केसी क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट से वो किस तरफ आएगा? वो रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा. देन रिमेंबर देख, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जो केसी है, केसी विल डिक्रीज, केसी में डिक्रीज आ जाएगा. ठीक है, रिमेंबर देख, केसी विल बी डिक्रीज. ओके, लेट मी राइट दिस प्रॉपर. केसी will be decreased. Log Kc will decrease. Kc here will be decreased with increase in temperature. But if we say that when we temperature decreased for this system, when we decrease the temperature, so when we decrease the temperature, look here, system move in forward direction. System move in the forward direction. तो जब सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन? रिमेंबर दैट, जब फॉरवर्ड जाएगा तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे. जब ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि केसी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. सो आई कैन राइट हियर दैट टेम्परेचर डिक्रीज, देन द केसी विल इंक्रीज इन दैट केस. सो इट मींस दैट इधर से हम एक पॉइंट पिक कर रहे हैं कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज के साथ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, और उस सूरत में जो केसी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स करके लिख लूं, लाइक मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूं कि लेट फॉर एग्जांपल अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसकी जो एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव. मतलब उसको क्या चाहिए? उसको हीट चाहिए, तब जाके वो एंडोथर्मिक बना है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो सिंपल, देखिए सिंपल कंसिडर करते हैं. फॉर दैट सिस्टम टेम्परेचर इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? If we increase the temperature, then what will happen? Remember students, temperature increase, look, well favors forward direction, because ऑलरेडी उसको टेम्परेचर चाहिए, तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में.
तो जब वो फॉरवर्ड सिस्टम जो है वो शिफ्ट होगा, उसके साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो आप ये कह सकते हैं ना कि द केसी विल बी इंक्रीज। केसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी सिस्टम के लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज तो रिवर्स डायरेक्शन को फेवर करेगा, बिकॉज ये तो एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स में एक्सो है। तो जब हम टेम्परेचर फॉल करेंगे वो तो रिवर्स डायरेक्शन को फेवर करेगा। उस सूरत में जो केसी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी डिफरेंट इक्विलिब्रिया। इसमें दो बातें जरूरी है, either the process is exothermic, either the process is endothermic। तो इस चीजों का ख्याल रखना होता है, ठीक है, तब हम जाके जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर की इफेक्ट से इक्विलिब्रियम भी इफेक्ट होगा और कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी इफेक्ट होगा, जो कि आप लोग जरा देखें, मैंने इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कभी कैसी डिक्रीज होगी तो कभी इंक्रीज होगी पहले के मुकाबले में, कभी इंक्रीज होगी और कभी डिक्रीज होगी। सो यू कीनली ऑब्जर्व दीज पॉइंट्स और इसको जो है आप लोग जो है वो पिक करते जाए, ठीक है। लास्ट फैक्टर है लीचेट्रियर प्रिंसिपल का, एंड दैट इज द लास्ट वन, एंड दैट इज 7.2.4। इसमें है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, how catalyst affect the equilibrium of a system। सो हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही इस फैक्टर्स में पिक कर लिया था कि याद रखिए कैटलिस्ट नाइदर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। आई रिपीट पॉइंट नंबर फर्स्ट, catalyst not affect a catalyst not affect equilibrium। A catalyst not affect equilibrium। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट पे रोल क्या प्ले करेगा अगर ये किसी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर सकता? रिमेंबर दैट द सेकंड पॉइंट कि कैटलिस्ट रिड्यूस टाइम, कैटलिस्ट रिड्यूस टाइम फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश, फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। ये क्या कर देता है? टाइम रिड्यूस कर देता है फॉर द इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। स्टूडेंट्स चलिए, तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं? ये रिड्यूस टाइम करते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। लेट मी प्रोमिनेंट दिस वन, ये थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं। ओके, नो पॉइंट इज दैट कि कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट रिड्यूस टाइम, इट रिड्यूस टाइम फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश। ओके, देखिए कैटलिस्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, आप सबको जो है ये भी पता होना चाहिए कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चन, और नोट भी करें आप लोग ये पॉइंट कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होगा? A catalyst increase the rate of forward as well as the reverse reaction। Remember that in the case of reversible reaction, catalyst increase rate of both, increase the rate of both forward and reverse। I repeat, a catalyst increase the rate of both forward and reverse reaction, दोनों का रेट क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अचीव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाते हैं? जल्दी अचीव हो जाते हैं। ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल ये पढ़ रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं कि एमोनिया बनाए, वैसे सपोज कर रहे हैं, ठीक है,
और इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। सपोज करते हैं इसको कि लेट फॉर एग्जांपल इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है 10 आवर्स में, लेट फॉर एग्जांपल। तो बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, लाइक जब हम इसमें आयरन यूज करते हैं तो इसमें आयरन रोल प्ले करता है एज कैटलिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट टाइम रिड्यूस कर लेते हैं ताकि जल्दी इक्विलिब्रियम बने। कैसे रिड्यूस करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को और रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा उसके रेट को, जिसकी वजह से कम टाइम में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो याद रखिए कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, और जब वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर सकता तो एक कैटलिस्ट जो है वो कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ डेट लाइक फैक्टर जो हमने प्रेशर में पिक किया, जो हमने कंसंट्रेशन में पिक किया, या जो हमने टेम्परेचर में जो उसको पिक किया कि अगर आप उसको चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा कंसंट्रेशन के साथ, केसी चेंज नहीं होगी। प्रेशर के चेंज के साथ इक्विलिब्रियम चेंज होगा, केसी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो केसी भी चेंज होगी और इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। और जहां पे कैटलिस्ट की बात आएगी तो कैटलिस्ट चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करता और साथ में कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ टाइम रिड्यूस करते हैं टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। और रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में एक कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स जो हम ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स जो है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, सो एप्लीकेशंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग जो इक्विलिब्रियम है, उसके बाद हम उसी रिचर्ड प्रिंसिपल के दो एप्लीकेशंस को पिक करते हैं। ठीक है, जो कि टॉपिक टाइटल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द रिचर्ड प्रिंसिपल। इसमें हम दो पढ़ेंगे, वन इज द कांटेक्ट प्रोसेस और सेकंड वन जो है वो हेबर्स प्रोसेस, हम उसको पिक करेंगे। हेबर्स प्रोसेस में एमोनिया सिंथेसिस को बाय द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड बाय द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन हम कैसे पिक करेंगे कि प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और सेकंड वन हम कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। व्हाट इज कांटेक्ट प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के प्रोसेस को कहा जाता है कांटेक्ट प्रोसेस फ्रॉम दैट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम दोनों को जो है वो पिक कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इधर से, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ हेबर्स प्रोसेस। देखिए हेबर्स प्रोसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हेबर्स प्रोसेस हम कहते हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। प्रोसेस कौन सा होता है? सिंथेसिस of NH3 from nitrogen and hydrogen। हम रिचर्ड प्रिंसिपल को एमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए, ताकि उसकी अमाउंट को हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन कर सके, हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते, ठीक है, तो इट फॉर्म एमोनिया। एमोनिया सिंथेसिस जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होती है -92 कैलोजूल पर मोल होती है। जबकि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो 450 डिग्री सी टेम्परेचर हम देते हैं, जो कि इसकी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाते हैं। याद रखना है, सबसे पहले तो आप सारे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि दिस टेम्परेचर is given in the Haber's process because we want to break the bonds between nitrogen. That's the most important. कि है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फिर भी इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों है? So क्यों ज्यादा है? I repeat that this more temperature is only to break the bonds in the nitrogen molecule because बहुत stable है। तो हम जरा एप्लीकेशन ऑन द बेस ऑफ रिचर्ड प्रिंसिपल पिक कर रहे हैं वन बाय वन इन द हेबर्स प्रोसेस। तो नंबर फर्स्ट हम पिक करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए सो इजी। हम एमोनिया की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम कंसंट्रेशन की इफेक्ट को जो है वो बेस बनाते हैं। नंबर फर्स्ट हमें क्या कर सकता हूं, आवर एज रिएक्टेंट्स
reactant concentration with shift equilibrium. If I write a break in this one ताकि मैं उसके बाद दूसरे फैक्टर्स भी थोड़े से एक्सप्लेन करूं. Will shift system to the forward and increase in NH3 concentration अगर. तो एक तो ये फैक्टर है, मतलब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा जो क्या करेगा, सारे सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराएगा. तो उससे क्या होगा, इससे मैं ये जो है पिक कर सकता हूँ कि अमोनिया की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, नंबर टू I'll remove ammonia. I will remove ammonia. जब मैं अमोनिया को रिमूव करूंगा then the system again move. ठीक है, again move in forward direction. तो उस सूरत में भी ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, एमोनिया की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे. तो हम यही कहेंगे कि एमोनिया की कंसंट्रेशन हमने क्या कर लिए, इंक्रीज कर लिए. ठीक है, ओके. दी फैक्टर नंबर टू जिसको मैं बेस बना के एमोनिया की कंसंट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन कर सकता हूं, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो जैसे आपने प्रेशर की इफेक्ट में पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर डिक्रीज वॉल्यूम होगा. तो मैं ये लिख सकता हूं, देखिए आप आराम से ये एप्लीकेशन में पिक कर सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर will shift system to forward direction to obtain more ammonia. This is the factor number 2. Okay, now there is a factor number 3. Temperature. So as you know कि एमोनिया की जो सिंथेसिस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फिर भी हम टेम्परेचर 450 डिग्री सी देते हैं. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि टेम्परेचर 450 डिग्री सी is the optimum temperature upon which more ammonia to form, more NH3 to form. हम इस ज्यादा टेम्परेचर क्यों रखते हैं, 400 से लेके 450 तक टेम्परेचर जो हम उसको रखते हैं. अगर इससे टेम्परेचर आउटवर्ड इंक्रीज करेंगे, 450 से आउटवर्ड उसको इंक्रीज करेंगे, तो याद रखिए टू विल शिफ्ट द प्रोसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिससे एमोनिया की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, वो डिक्रीज आएगा. लेकिन अगर टेम्परेचर 450 तक बढ़ा के ले जा रहे हैं तो उस सूरत में एमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा जो है वो बनेगी बाय फोकसिंग द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर. बिकॉज हर एक प्रोसेस के लिए एक टेम्परेचर ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्टिमम कंडीशन टेम्परेचर कहते हैं, जिसपे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सुटेबली ज्यादा जो है वो बन रहा होता है. ठीक है, सो द टेम्परेचर इफेक्ट द 450 डिग्री सी इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे ज्यादा से ज्यादा एमोनिया हम बना सकते हैं. पॉइंट ये है, व्हाई दिस 450 डिग्री सी टेम्परेचर हम 450 डिग्री सी क्यों रखते हैं, या कम क्यों नहीं रखते, रूम टेम्परेचर क्यों नहीं होता. तो इसलिए दिस हाई टेम्परेचर is for the breaking of into molecule bonds. मतलब ये हाई टेम्परेचर ये हाईली एंडोथर्मिक ड्यू टू N2 है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से ये हाईली एंडोथर्मिक होता है बिकॉज इट्स मच मोर स्टेबल. ओके, जब हम फोर्थ फैक्टर की तरफ आते हैं, ठीक है, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. हमने इनिशिएटिव प्रिंसिपल में भी ये पिक किया कि कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम में इफेक्ट नहीं करता. हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट the equilibrium between
between nitrogen, hydrogen and NH3 will establish quickly. वो सिर्फ क्विकली जो है वो क्या हो जाएगा, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी कैटालिस्ट कभी किसी सूरत जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं करता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कम टाइम में जो है कम टाइम में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेकंड एप्लीकेशन है लिचेट्रियर प्रिंसिपल का। सेकंड एप्लीकेशन एंड दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। उसको नेक्स्ट पिक कर रहे हैं कांटेक्ट प्रोसेस के लिए। ओके, व्हाट इज द कांटेक्ट प्रोसेस? सबसे पहले आप ये जरा देखिए, इस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बना देता है। कांटेक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब कांटेक्ट प्रोसेस क्या होते हैं? कांटेक्ट प्रोसेस हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, H2SO4 प्रोडक्शन प्रोसेस is known as the contact process. By focusing the Leschettier principle, how we will increase the concentration of sulfur trioxide? कैसे कर सकते हैं? ठीक है, so number first, effect of concentration. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फिर से हम ये पिक कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट पॉइंट ये पिक कर सकते हैं कि बाय एडिशन ऑफ sulfur dioxide and oxygen, what will happen? Increase in the concentration of sulfur trioxide occurs. फर्स्ट हम ये कर सकते हैं। सेकंड वन स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं? देखिए वही पॉइंट्स है। If we remove the sulfur trioxide, तो फिर से देखिए the system move in forward direction, सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, so form sulfur trioxide in more concentration, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, फैक्टर नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट है? हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देखो जरा, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है। सो इफ आई वांट टू इंक्रीज द प्रेशर, now the pressure increase will shift the whole system to the right side to form more concentration of sulfur trioxide। हम ये भी कर सकते हैं। और फैक्टर नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Okay, so देखिए dear students, the contact process, that sulfur dioxide when reacts with oxygen to form sulfur trioxide, the process is exothermic. its enthalpy change is negative, exothermic है। So हमने लिचेट्रियर प्रिंसिपल में ये पिक किया था कि नो डिक्रीज इन टेम्परेचर will favors the formation of more sulfur trioxide. So when we fall the temperature, the system move to the right side और ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या बन जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बन जाएगी। और अगर हम फोर्थ फैक्टर पे फोकस करते हैं एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो आप सबको ये क्लियर होना चाहिए कि कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, बट इन दिस प्रोसेस
जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो क्या कर लेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कर लेगा, बाकी वो कंसंट्रेशन को किसी सूरत चेंज नहीं करेगा. So this vanadium pentoxide which act as catalyst here, it will achievable for that purpose, ना कि हम उसको मैं कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करा देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जल्दी जल्दी बन जाएगी, कम टाइम में जो है वो बन जाएगा सर. तो ये दो मेन जो इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं लीचेटियर प्रिंसिपल की. एक है कांटेक्ट प्रोसेस, इसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, फिर उसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर में जो है ऑब्टेन करते हैं, उसको साथ रिएक्ट कराते हैं जाके वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो क्या कर देते हैं, वो बना देता है. और इसके अलावा दूसरा प्रोसेस जो है वो हेबर्स प्रोसेस है, जिसमें हम एमोनिया की सिंथेसिस कराते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस ऑल अबाउट the factors affecting the equilibrium, the Le Chatelier's principle, and the two main applications of the Le Chatelier's principle. Okay ji, Allah Hafiz.